Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. What we will learn today is all about cell membrane, that is cell membrane's structure, model that explain the structure of cell membrane and functions of cell membrane, and then cytoplasms, composition and functions of cytoplasm. Now let's begin with the cell membrane. So all the prokaryotic and eukaryotic cells. So prokaryotic cells are the cells which do not have well-defined nucleus and only nuclear material present in the cytoplasm. But in case of eukaryotic cells, well-defined nucleus is present. So या prokaryotic cell है या eukaryotic cells है, they both have outermost covering and that is called cell membrane. So cell membrane is a thin and elastic membrane that covers the cytoplasm. Okay. So the chemical analysis reveals that cell membrane is composed of proteins, lipids and small quantities of carbohydrates. अच्छा, इनके जब हम अरेंजमेंट के लिए बहुत सारी स्टडी की गई, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अच्छा, इसलिए होता है कि फ्लूइड फॉर्म में है एंड मोज़ेक उसका मोज़ेक एक आर्ट फॉर्म होता है. सो हाउ दे आर अरेंज्ड इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अच्छा, जैसे होता है ना एक सैंडविच में दो ब्रेड के slices हैं and inside there is some patty or some material is present, just like that fluid mosaic model. There is a lipid bilayer. ठीक है, lipid, this is lipid layer, this is lipid layer, this is lipid bilayer, and inside the lipid bilayer there are some proteins present, there are some carbohydrates are present. ठीक है. So proteins and lipids they attached some carbohydrates. So carbohydrates किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, या वो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट है या ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हैं या लिपिड्स के साथ अटैच्ड हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर. बाइलेयर मींस टू लेयर्स in which protein molecules are embedded. Embedded का मतलब होता है उसके अंदर present है, like that of the patty of that sandwich. The lipid bilayer gives fluidity and elasticity to the membrane. ठीक है. Small amount of carbohydrates are present और वो किस फॉर्म में present है, वो या ग्लाइको की प्रोटीन की फॉर्म में या ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में present है, because they present joint with the proteins or lipids of membrane. अच्छा जी, कुछ यूकेरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट एज इन लिपिड बाइलेयर. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सेल है तो उसमें समटाइम्स कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है. अच्छा जी, कीप वन थिंग इन योर माइंड, इन यूकेरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनकी अपनी मेम्ब्रेन होती है. और वो कौन कौन से हैं, लाइक न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी मेम्ब्रेन है और गोल्गी एपरेटस की अपनी मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड्स की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है. अच्छा, उनके भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, द लाइक लिपिड बाइलेयर वाला स्ट्रक्चर. सो इन यूकेरियोटिक सेल हैव मैनी ऑर्गेनल्स. For example, mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, and endoplasmic reticulum, and they all are bounded by a a membrane which is called plasma membrane. So functions क्या है cell membrane के? It is its main function is as semi-permeable. Semi-permeable का मतलब है कि they allow some material to pass and they restrict the movement of some molecules. यानी कुछ तो पास हो सकते हैं, सब पास नहीं हो सकते. They do not allow all the material to pass. They only allow few material to pass through them. ठीक है, as you have seen in the diagram कि कुछ material सिर्फ पास हो रहे हैं. अच्छा, इट ऑल्सो फेंसिंग द मेजोरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड द सेल. फेंस किसके लिए होता है, फेंस होता है ना बाड़, कि एक चीज दूसरी जगह मूव ना कर सके, एक बॉर्डर बना दिया जाता है. सो इट ऑल्सो जस्ट लाइक ए बॉर्डर दैट कंटेन्स द केमिकल इनसाइड द सेल. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो मेंटेन्स द इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, कि बहुत मटेरियल और जो भी प्रोडक्ट्स हैं
अगर वो सेल के लिए रिक्वायर्ड है, सो दे रिमेन इनसाइड द सेल. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो सेंड्स केमिकल मैसेज. ठीक है, कि कौन से केमिकल को एंटर करना है, कौन से केमिकल को सेल के अंदर ही रखना है. एंड सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो आइडेंटिफाई सम अदर सेल्स. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं ना, लाइक वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, दे डू नॉट अलाउ ऑल द मटेरियल, all the cells enter into the cell. ठीक है. So the functions are as a semipermeable membrane, as in fencing the majority of chemicals, maintains the internal composition, they can sense chemical message, and they can identify other cells. अच्छा जी, now let's begin the cytoplasm. Cytoplasm क्या है? Cytoplasm is a semi-viscous सेमी ट्रांसपेरेंट. विस्कस क्या होता है? जस्ट लाइक ए जेली. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक ए जेली लाइक मटेरियल. इट्स अ सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट होता है ना, जिससे हम एक जिसके आर पर हम देख सकते हैं, दैट इज सेमी ट्रांसपेरेंट. सेमी विस्कस इज जस्ट लाइक ए जेली, सो इट्स अ सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देखें साइटोप्लाज्म कहाँ पे है. ठीक है, inside the between the nuclear membrane and plasma membrane the cytoplasm is present. अच्छा, इस साइटोप्लाज्म की हम कॉम्पोजिशन देखते हैं. इट कंटेन्स water in which many other organic molecules like proteins, carbohydrates, lipids and some inorganic salts are also present. और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्या ये completely dissolved फॉर्म में है या partially dissolved फॉर्म में है? partially means कि कुछ पार्ट उसका डिसॉल्व है. So it is mainly composed of organic molecules, inorganic molecules and water. अच्छा, इसका एक बात अमेजिंग है साइटोप्लाज्म की कि that it provides space for proper functioning of organelles. सब organelles साइटोप्लाज्म में present हैं, so they need cytoplasm for their proper functioning. And it is the site for various biochemical processes. बायोकेमिकल प्रोसेस का है कि किसी मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग या ब्रेक डाउन. लाइक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म में हर तरह का मटेरियल प्रोसेस हो रहा होता है. मेटाबॉलिक मीन्स कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं बिल्डिंग अप ऑफ कंपाउंड, कुछ ऐसे हैं ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड. दे ऑल टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म. So thank you very much for listening me. Hope you can understand the whole concept of cell membrane and cytoplasm. If you have any question, do ask me. Thank you and Allah Hafiz.